Next question number 14. Show that the area of the sector of a circular region of radius r is 1/2 r square theta. So हमारे पास area of sector is equal to 1/2 r square theta. And next हमारे पास where theta is the circular measure of the central angle of the sector. हमने शो करना है कि यही फॉर्मूला एरिया ऑफ द सेक्टर का है. So these types of statement questions are important. We know that one loop of the circle is 360 degrees. So 360 डिग्री वन लूप का हमारे पास एंगल आ जाएगा और इसको हम 2 पाई भी लिख सकते हैं वन लूप का रेडियस. अब हमारे पास एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू central angle over 2 pi. Sector is basically any part of the circle. कोई भी पार्ट अगर सर्कल का हो तो वो सेक्टर होगा. अच्छा, तो सेंट्रल एंगल कोई वैल्यू ही होगी तो उसको हम थीटा से शो कर देते हैं. पाई आर इज़ द सेम दिस वन वैल्यू. एरिया ऑफ द सेक्टर हमने फाइंड करना है, इसके इक्वल हमने प्रूव करना है. तो एरिया ऑफ सेक्टर हम उसी तरह लिख देते हैं और एरिया ऑफ द सर्कल इज़ पाई आर स्क्वायर. सो इसको हम बेसिकली सॉल्व करेंगे. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा ओवर 2 पाई एंड दिस वैल्यू विल बी मल्टीप्लाई हेयर. पाई से कैंसिल हो जाएगा. थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 1/2 theta r square. So these values are same as 1/2 r theta r square theta. So area of the sector, this is how we prove that the area of the sector is 1/2 pi r square. Next question number 15 is two cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degrees and 20 east and 25 degrees west respectively. So this is the theta 1 angle 1 and this is the theta 2. Find the distance between the two cities taking radius of the earth as 6400 kilometers. So theta 1 is 45 degrees and theta 2 is equal to 25 degrees. If we have to find the value of theta, so we will add theta 1 and theta 2. So 45 plus 25 degrees is equal to 70 degrees. Okay, so we have to convert this theta into radians. So theta is equal to 70 multiply pi over 180. 0 से कैंसिल हो जाएगा. 70 pi over 18. So this is the value of theta and the value of r is 6400 kilometers. Okay, we have the value of theta, we have the value of r, so we have to find the value of L. So we will use the formula L is equal to r theta and r is 6400 kilometers and multiply with theta and that is 7 pi over 18. Okay, so we will use calculator to find this answer. 64,000 multiply 7 pi. We will directly put the values to find the answer. The answer is 7819.0
kilometers, and this is the value of L. This is how we will calculate the value of length if theta and r, the value of r radius is given. So next question is, that is important. The moon subtends an angle of 0.5 degrees at the eye of the observer on earth. एंगल हमारे पास आ गया, थीटा इज इक्वल टू 0.5 डिग्रीज. द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.844 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ किलोमीटर्स. सो हमारे पास आर की वैल्यू भी आ गई. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून. सो एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. एल हमारे पास रिक्वायर है, आर और थीटा की हमारे पास वैल्यू गिवन है. सो हम डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. सो एल इज इक्वल टू आर थीटा. सो द वैल्यू ऑफ एल इज रिक्वायर्ड. आर की वैल्यू हमारे पास 3.844 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ kilometers, and the value of theta is 0.5 degrees. 0.5 को हम पहले कन्वर्ट करेंगे in radians. So we will multiply pi over 180. So 0.5 multiply pi over 180. The answer will be 1/360 pi, and we have to find the value of L. So L is equal to r theta. This is r. So we will put the values 3.844 multiply 10⁻⁵ multiply 1/360 into pi. So ये तो हमने पहले कैलकुलेट किया था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.844 मल्टीप्लाई 10⁻⁵. So the answer is 3354.52, and the value of r is in kilometers, so kilometers will be the unit. So this is the value of length L. Next question is, the angle subtended by the earth at the eye of a spaceman landed on the moon is 1 degree and 54 seconds. So the theta is 1 degree and 54 minutes. The radius of the earth is 64 kilometers, and find the approximate distance between the moon and the earth. मून एंड अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको भी हम आर से शो करते हैं. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. ये भी आर है हमारे पास रेडियस, और ये भी हमारे पास आर से आर आ रहा है. तो हमें सबसे पहले तो एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी. सो वी आल्सो नो दैट द डायमीटर, द फॉर्मूला ऑफ डायमीटर इज़ 2r, डबल ऑफ द रेडियस. सो रेडियस हम इसकी वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा 264 किलोमीटर्स. इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 किलोमीटर्स. तो डायमीटर को हम एल से भी शो करता है. तो हमने बेसिकली आर की वैल्यू फाइंड करनी है. एल की हमारे पास वैल्यू आ गई है, थीटा की वैल्यू भी आ गई है, और थीटा हमारे पास सक्सेसिमल सिस्टम में है, तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे और एल और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में, और आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. थीटा को अगर हम कन्वर्ट करें सबसे पहले, तो थीटा इज़ डिग्री 1 degree and 54 minutes. सो 1 + 54 मिनट्स में है, तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे. सो एलसीएम लेंगे सबसे पहले. 60 + 54 / 60, तो ऐड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 114/60. अगेन हम इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर होगा 19/10. ओके, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियंस, और अगर हम इसको पॉइंट्स में लें तो 1.9 रेडियंस,
1.9 degrees. So theta is 1.9 degrees और 19/10 भी लिख सकते हैं इसको। 1/180 के साथ हम डिवाइड करेंगे ताकि हम इसको रेडियंस पे कन्वर्ट कर दें। सो 19/10 multiply pi/180, the answer is 0.03316। ओके, अब हमारे पास थीटा की वैल्यू भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है। सो आर हमने फाइंड करना है। L इज इक्वल टू आर थीटा इज द फॉर्मूला, और R इज इक्वल टू L/थीटा। L की वैल्यू हमारे पास है 12800 किलोमीटर्स ओवर 0.03316। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 385.99 kilometers, and this is the value of R, that is required value of the radius.